Anyway, so hello everybody. Welcome to Ghee and Gains once again, where we dive into everything related to health, fitness, and everything in between, Mhm. life, career, anything that you can think of possibly. Today we are talking about a self-reflective topic. It's been quite some time that we have, transformed ourselves from the people we were approximately 10 years ago to what we are now. So we're going to talk about those things in general. We will share some experiences. बहुत अलग बन चुके हैं हम समय के साथ, बहुत चीजें हमने सीखी भी हैं, और हमें लगता है कि शायद किसी की हेल्प करें ये टॉपिक। तो वहीं से शुरू करते हैं। मंशा, क्या लगता है 10 साल पहले क्या क्या ऐसी चीजें थी जो अच्छी लगती थी या फिर लगती थी कि सही है, और अब वो नहीं लगती? I absolutely love this topic क्योंकि I believe it is necessary to look back and reflect and have like a measure in a sense कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो. And if you don't do that, I think you're doing sort of like a disservice to yourself. And sometimes you look back at certain events जो randomly तुम्हारे दिमाग में 3 बजे के around आते हैं if you're awake. Wow, I was so stupid, right? But then there are certain things which you appreciated about yourself in the past, which was like I was a more outgoing person. Not that I like that anymore. I'm a different person now. But still, it was like I was more outgoing, more sociable. And in general, I believe you just become a very different person. हाँ, मतलब बचपन में कूल लगना था ना हर चीज के लिए। आई ऑलवेज फेल दैट हाउ डू आई फिट इन टू अ क्राउड। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी चीज में, मतलब अगर एक झुंड का पार्ट है, कोई बहुत सारे दोस्त है जहाँ पे, या बहुत सारे लोग हैं, उस क्राउड का पार्ट कैसे बना जाए। सो व्हाट इज इट दैट आई कुड डू इन ऑर्डर टू फिट इनटू अ प्लेस which does two things to you as a person. It takes you Hmm. away from what you are. हो सकता है कि आप उस क्राउड का पार्ट ही ना हो, बट आपको फिट होने के लिए वैसा बनना पड़ रहा है, तो आप एक तो वो कोशिश करते हो। दूसरा, जो आपको आसपास दिखता है, आपको लगता है कि यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, बट क्या वो सच में अच्छी है? जस्ट बिकॉज masses have approved it, just because most people are doing it, doesn't mean it's the right thing to do, right? But you are too young to understand, plus you are like, अरे यार यही तो चाहिए लाइफ में, है ना? आदमी देखता है कि you see certain set of influencers. हमारे टाइम पे influencers बहुत डिफरेंट थे। हम रॉनी कोलमैन को देखते थे आर्नोल्ड को देखते थे, तो हमें लगता था हाँ शायद शायद वही एक तरीका है किसी भी चीज को करने का, या वही एक, लाइक इट्स अ वेरी नैरो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। या करियर में भी अगर हम देखें तो उस समय पे बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आते थे इन्फ्लुएंसर्स के, या इवन बिजनेसमैन के फॉर दैट मैटर। उस समय पे बिल गेट्स दिखता था, स्टीव जॉब्स दिखता था, ऑल दोज पीपल who were in the key light or limelight is what we used to look up to. बट उनकी जर्नी अलग है, हमारी शायद अलग थी, इनफैक्ट अलग है, उस पर बात करेंगे। तो why do you think as a younger person we tend to do that? I believe we have that confidence, and also even when we don't know the fact that Aham Brahmasmi is playing a role in our lives, even if we're not familiar with the term, tend to practice that, if you get what I mean. So it's more like internally आपको लगता है कि हाँ 50 लोगों के साथ वो चीज हो रही है मेरे साथ थोड़ी ना होगी if I do the same thing because I'm special. I'm unique. Correct. Yeah. But the thing when which you realize when you grow up and when you go through life is you realize that yeah you are special but then so is everybody else. You are unique but then so is everybody else. So that pattern which applies to everybody also applies to you. So what is I want to ask you, what is that one life event you want to quote here? Because I know हमने बहुत जेनेरिक बात करी है, हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, बट कोई एक ऐसा की मोमेंट या कोई एक ऐसी की एक्सपीरियंस जो आप, जिस पे आप बात करना चाहोगे कि वो उस समय सही लगता था बट आज देखते हैं तो हंसी आती है उसको देख के,
यार ऐसा कैसे सोच सकता था मैं या सोच सकती थी मैं। I believe there is this one particular incident that I can share. It's mainly about the fact that my belief system, what it used to be, it's not anymore. In particular, I would say that I used to be a hardcore atheist, like hardcore. ठीक है, तो तुम्हारे एटीएस के जो भी बाप होते हैं या माँ होती है, कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं है। नो व्हाट एथिज्म इज, इट मींस you do not believe in the power of God or God as an entity. you do not believe that there is one single entity or there is this unique creature sitting in the clouds who is judging everything that is about you. You just believe that everything that you do has like a ripple effect and you are the master of your own destiny or whatever Yeah, the fuck, right? yeah. And it kind of uh, cemented after I lost my dad. After that, वैसे भी मेरे को इतना कोई क्रेज नहीं था उस चीज का. But then after Hmm. my dad, I decided that I'm not going to step foot in a fucking temple anymore. And my family is very religious in the sense that my mother is very spiritual. जब भी हम किसी भी मंदिर जाते थे, and I used to tag along because मुझे बोला जाता था. I used to sit in the car. Not going to go inside. I'm not going to step foot in the fucking temple. That was that was like I was so firm on this कि मैंने for the next 10 years, I did not step into the any temple the way that I was because I used to be like, no, God is not real. And I used to like argue with people with like research. मेरे को research paper दिखा bro. मेरे को research paper दिखा. कहाँ पे scientifically मेरे को proof करके दिखा bro. Problem is when you start learning about certain things about the universe, about your own self, about human body and all that shit, you'll Yeah, suddenly realize that the five senses that you have, they lie to you. yeah, yeah. Alright, इधर मैं थोड़ा सा nerd वाला aspect में लेकर चलूंगी कि your eyes, right? If you think that you have HD vision and all that shit, like जो 180 डिग्री वाले पे होती है, चल 180 डिग्री नहीं तो थोड़ा सा कम मान ले 145 और समथिंग लाइक जो पेरिफेरल विजन नहीं है ना, वो भी HD नहीं है. You know what our Right. brain does? Yeah. Hmm. Our eyes move like 3 times per second, like a rapid movement. Yeah. And what it does is it captures certain aspects of what you're seeing in HD. And And it creates an image. your brain just ties everything together. Yep. हमें पूरा जानने Yes. की जरूरत नहीं है. हमारा ब्रेन जो fill in the blanks है ना वो कर देता है. When you know about this, when you experience this in your day to day life, right? जब आपको नमक नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ आपको भेजती है कि जाओ किचन में ये चीज है या आपके कमरे में ये चीज पड़ी है लेकर आओ, एंड यू कांट फकिंग सी इट एंड देन somebody else is like सामने ही तो रखा है एंड देन यू फील सो फकिंग stupid. ऐसा कैसे? एंड देन व्हेन यू नो अबाउट this particular thing and it makes sense. Yep. That was my example of how I, as a person, have completely changed from the mindset that, of course, everything has to be scientific, everything has to Yeah. have some base reality कि भाई ये scientifically proven होना चाहिए या prove कर सकते हैं. But then to realizing not everything that you see you can believe, Yeah. not everything. Science also has its limitation. Why? Because problem is हमारे पास अगर limitation है, then science will also be limited. I mean, just to add on to what you mentioned, science works on hypothesis, and hypothesis itself says it is hypothesis, right? We are trying to prove what we believe is true, unless proven, otherwise. So, that being said, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी है चेंज होती रहेगी, समय के साथ बदली भी है. बहुत लोग अर्थ को फ्लैट मानते थे, आज नहीं मानते हैं क्योंकि मानते हैं. There are some people. हाँ, हम उनकी बात नहीं करेंगे. वो शायद कुछ और भी चीजें मानते होंगे. बट आई विल टॉक अबाउट वन की मोमेंट इन माय लाइफ दैट आई थॉट, यू नो, आई हैड इट ऑल फिगर्ड आउट, बट आई डिडंट. आई विल स्टार्ट वेरी लाइक क्वाइट अर्ली इन माय लाइफ. जब हम पढ़ ही रहे होते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि यार टेंथ क्लियर कर ले, उसके बाद सब सॉर्टेड है. फिर आप टेंथ क्लियर करते हो, आप 11th में पहुंचते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या लेना है. आप भीड़ को देखते हो, आप उस भीड़ को फॉलो करते हो कि अच्छा सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कॉमर्स वही लोग कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप में कैटेगरी बना लेते हो कि
अरे ये तो मुझसे कम दिमाग वाला है, तो आई विल स्टिक टू साइंस, राइट, बिकॉज मैं तो ब्रेड दिमाग वाला हूँ। बट आप फिर एग्जैक्ट। साइंस में जाते हो, फिर वो आपके दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। और फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। वो बिकॉज वो ब्रिज इतना बड़ा है बिल्ड करने के लिए, टेंथ हाँ से इलेवेंथ में, कि नोबडी नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर इट। और जब आप उस स्टेज पे जाते भी हो, तो आपको समझ आता है यार ये तो मुझे करना ही नहीं था। ये मैं क्या करने लग गया। बट क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर इट, एंड देन यू आर ऑल्सो टोल्ड अनदर पेडिस्टल कि हाँ चलो अब ट्वेल्थ खत्म कर लो, बोर्ड्स ट्वेल्थ वाले फिनिश कर लो, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कोई टेंशन नहीं है, एक बारी कॉलेज में तो घुस जाओ, जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। Because हम्म that's the conventional route that most people take in life, ठीक। and that's what our parents have understood as well, कि हाँ यही तो है, यही तो तरीका है सक्सेसफुल होने का। यू नो, देर आर मेनी ऑप्शंस इन नाउ, व्हेन वी स्पीक अबाउट ऑप्शंस। हमारे समय पे उतने ऑप्शंस शायद थे, बट हम अवेयर नहीं थे, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेंटोर नहीं था हमारे पास, राइट। कोई बता ही नहीं सकता था कि क्या करना है लाइफ में, क्योंकि जो भी बता रहा था वो वही वही बता रहा था जो उसने किया था। और जरूरी नहीं है एग्जैक्टली। कि कोई इंसान जिस चीज में सक्सेसफुल है हम भी उसमें हो। फॉर मी द मोस्ट पिवटल पार्ट वाज कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा, तो हर इंसान सिर्फ असाइनमेंट पूरा कर रहा है, किसी को लर्निंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई वाज लाइक डूड, मेरा तो दिमाग कुछ और कह रहा था। मैं तो ये सोच के गया था कि मैं इंजीनियरिंग में घुसूंगा और कार वार डिजाइन करूंगा, क्योंकि मूवीज में वैसे ही दिखाते हैं, राइट, कि एक इंजीनियर। टार्जन। टार्जन द कार। हाँ हाँ, मतलब मेरे मेरे बेंचमार्क थोड़े अलग थे, मैंने टार्जन मूवी देखी थी। बट बट आपके दिमाग में तो यही चलता ना कि यार एक इंजीनियर तो यही सब करता होगा ना, ब्रिज वगैरह बना देता होगा, कार बना देता होगा। अब ये किसने बताया कि यार ये मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर करता है, कंप्यूटर इंजीनियर ये करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये करता है। आज की डेट में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो फ्रेंड्स हैं वो भी कोड कर रहे हैं। तो जब ये रियलिटी चेक मिला, मैंने कहा यार यहाँ तो फंस गए। एंड थ्री इडियट्स केम इन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम व्हेन वी वर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, ओह राइट। या हाँ एग्जैक्टली या। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई थी वो पिक्चर, मैंने कहा यार एक साल पहले आ जाती, मैं कॉलेज में नहीं जाता। मैं कुछ और कर लेता। या फिर मैं फिटनेस में घुस जाता यार, और उस समय खैर फिटनेस के बारे में कभी सोचा नहीं था। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द एंट्री इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज वाज पिवटल फॉर मी टू रियलाइज कि अगले 4 साल बर्बाद होने वाले हैं, ये मुझे समझ आ गया था। जैसे ही घुसा मुझे समझ आया, मैंने कहा 4 साल तो गए। बट अगेन अनसर्टेनिटी इतनी है कि पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, राइट। हमें हम्म अभी भी नहीं पता, हम ये बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनीबडी। शायद एक इंसान को फायदा हो जाए, अगर उसकी भी लाइफ सॉर्ट हो गई तो बढ़िया है, मतलब हमारे लिए तो फुलफिलिंग है ना। नॉट वन मोमेंट, इनफैक्ट सेवरल मोमेंट्स लाइक दीज हैव अकर्ड इन माय लाइफ वेयर आई हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार क्या क्या यही एक तरीका है कुछ भी करने का। उस समय पे उतनी ही इंफॉर्मेशन थी, हम्म। जिससे पूछ रहे थे उसके पास भी इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, राइट। आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढनी मुश्किल है। लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव ज्ञान, हम भी दे ही रहे हैं। अगर अभी तुम्हारे पास ऑप्शन होता, टू गो बैक इन टाइम, व्हाट डू यू थिंक वुड यू हैव डन बेटर, और टू बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू आर राइट नाउ? आई बिलीव इट्स अ कांस्टेंट थिंग एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स व्हाट यू शुड वांट इंटरनली। आपको अगर सामने वाला कहेगा ना कि ये चीज सही नहीं है, वो चीज सही नहीं है, आप कभी मानोगे ही नहीं। इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग, देयर इज नो फकिंग वे दैट योर माइंड विल चेंज अनलेस एंड अनटिल दैट इज इंटरनली व्हाट यू वांट, राइट। तो आप हेल्प भी तभी सीख करते हो इन अ ट्रूएस्ट सेंस, राइट, जब आपको वो नीड फील होती है कि हाँ मेरे को हेल्प चाहिए, इस चीज में मुझे हेल्प चाहिए। ठीक। अब राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही वेग और बहुत ही जेनरिक एग्जाम्पल देती हूँ। सीवी को ले लो। ठीक है। लोग कितने ही कहते हैं कि भाई जस्ट लुक एट माय सीवी, जस्ट प्लीज अगर मैं कुछ चेंजेस हो सकते हैं या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो प्लीज हेल्प मी। एंड देन यू गेट फीडबैक ऑन इट एंड देन यू मेक सर्टेन चेंजेस, बट वहां तक पहुंचने के लिए टू मेक दोज चेंजेस यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि भाई मेरा सीवी हो सकता है अप टू द मार्क नाउ, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू लाइक। आई नो बहुत ही आउट देयर वाला एग्जांपल है, बट इट इट काइंड ऑफ रिलेट्स टू यू। जब तक आपको खुद का रियलाइजेशन नहीं बैठेगा ना, वहां तक पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये अगर आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे में फॉल्ट है, स्पीकिंग ऑफ
There's another thing that I wanted to share, that not every single decision that you make when you're in your early 20s is necessarily bad or necessarily something that is going to change about you. अगर वो आपकी personality का core है, is something that you deeply believe in, that may not change, and that is not a bad thing. When we talk about change and improvement, not everything that needs to be changed, not everything that needs to be improved. दूसरों के कहने पे अपने आप को चेंज करना चालू कर देते हो, या you start copying other people just to become like them for whatever reason. Maybe there is a personality trait that you like about them or something like that, right? It's not going to help you because it's not you. You will get exhausted eventually. एक point ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे. Even mental health for that matter. You Yeah. mentioned, right? एक समय ऐसा था जब I had a lot of anger issues because I had a lot of piled up anger from childhood. Hmm. तो मेरे को एक आउटलेट मिल गया था वर्कआउट करने का कि भाई मेरा जो गुस्सा है वो एक तरीके से चैनलाइज हो जाता था. तो मुझे लगता था कोई भी इंसान अगर मेंटली परेशान है तो उसको बस वर्कआउट कर लेना चाहिए, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. एंड इट्स अ वेरी यूनिलैटरल वे ऑफ थिंकिंग. ऐसा नहीं है कि उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, होंगी, हेल्थ वाइज होंगी, बट हो सकता है उसको एक्चुअली में एक प्रोफेशनल की जरूरत हो. यू कांट Hmm. जनरलाइज थिंग्स. बट क्योंकि वो एनेक्डोटल डेटा था, मुझे लगता था हाँ अगर मेरे लिए वर्क किया तो शायद किसी और के लिए भी करेगा. तो शायद मैं उतने डिप्रेसिव थॉट्स में नहीं था जहाँ कोई और है. द For टाइमिंग them मैन, to exactly, द the timing. The timing is so fucking important. I'm glad you brought that टाइमिंग. up. The timing is so important because agar aap, you get an opportunity of a lifetime, but at a wrong point in your life, it fucks you up. When you grow up, it becomes easier for yourself to see through these things. When you're younger, you just don't know so many things about या the fucking world that you live in, and you're naive enough to feel कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है. There are certain aspects of it which are beautiful as fuck, but nahin, I don't think the same way. And I used to believe that the world is a beautiful fucking place. I don't think the same way anymore. I mean, I kind of echo it. Most people out there are trying to, stomp over you and move on. That's how survival works, I would say. मैं Hmm. उनकी गलती भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना रूथलेस है, अपॉर्चुनिटी कम है, समय कम है और चीजें करनी है. तो मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता ये ना करने के लिए या करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है बहुत लोगों के पास, Exactly. राइट? बट कैन आई call them guilty for it? No, because that's how things are working for them. क्या वो आपके मोरालिटी और एथिक्स से मैच करते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एज अ पर्सन you should be very introspective in general कि okay, you know, I'm thinking like this, it is not working out for me, can I make it better? If there are, let's say 100 people who have a similar opinion about me, is it because they are wrong or is it because I could be wrong as well? ये फिटनेस इंडस्ट्री में जब से हम आए हैं, Hmm. प्रतीक, how many times do you think that we have been wrong about certain things? So many times, man. Right from the beginning, I used to think कि अगर मैं आधे घंटे की एनाबॉलिक विंडो में प्रोटीन नहीं पीऊंगा तो जो मेहनत करी जिम में सब बर्बाद है. और 25 ग्राम से ज्यादा अगर मैंने प्रोटीन पी लिया तो बाकी वाला फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल यार. एक्सरसाइजेस के इतने सारे एग्जांपल हैं कि बिना स्क्वाट के भाई आप लेग नहीं बना सकते, बिना इसके आप ये नहीं कर सकते. तो वो बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट ओपिनियन है चीजों को लेके. एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज बैक इन द डे इंफॉर्मेशन वाज वेरी लिमिटेड. रॉनी कोलमैन का 21 रेप आर्म आर्म वर्कआउट याद है किसी को? I used to follow bodybuilding.com पे Chris Gethin का जो workout. I will never listen to any of them now on anything that they say. But at the time it was like, fuck man, कितने बढ़िया लोग हैं, क्या आई मस्त नो. एडवाइस देते हैं, फ्री और में फ्री शेयर में कर शेयर रहे कर हैं. फ्री में I शेयर कर know. रहे हैं. I was like, oh man, this man has made so much of, name and money in his life that he's sharing out plans for free. He's sharing out his advices for free. समझ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि नहीं समझ आती है. आज मैं देखता हूँ हंसी भी आती है, दुख भी होता है. लाइक आई नो from a phase of being regretful to laughing about it because there was lack of awareness, there was Hmm. lack of understanding, there was lack of the fact कि हाँ यार मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया इसके बियॉन्ड. मुझे तो इसने बोला मैंने मान लिया.
एग्जैक्टली। बट राइट? डू यू थिंक कि जब तक फेलियर्स ना हो लाइफ में, आर यू एबल टू लर्न एनीथिंग? Definitely not. I would say that if you haven't failed, chances are that you haven't learned a lot in life. अपने कल्चर में जैसा देखा गया है इन द रीसेंट इयर्स, that failure is not looked upon, in a positive light. Like it's something to learn from, it's something to grow from. That's true because most people relate failures to the metric of, in fact, failure in exam for that matter, to the metric of that person being intelligent enough or not, right? Or being Hmm. capable enough or not. What if I give you one perspective that failure also teaches you one way of not doing something? मुझे आज तक, इनफैक्ट कुछ समय पहले तक भी इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है। आज भी नहीं है, ठीक है? इतनी है कि अभी जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हो सकता है 5 साल बाद बदल जाए, इनफैक्ट 1 साल बाद बदल बदल जाए। 1 साल पहले तक मेरे को पूजा-पाठ जैसी चीज़ में विश्वास भी नहीं था। आज मैं डेली सुबह उठ के पूजा-पाठ करता हूँ। ओ या, सुबह 4 बजे उठ के ब्रो, सुबह 4 या लाइक 5 क्लॉक बजे वर्क. उठता हूँ। And like it's a routine, irrespective of what day it is, irrespective of whether I've slept enough. Now, why am I bringing this into this entire picture is because my way of thinking about life was very different. The way I thought of and saw the world was very different. आज मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। Hmm. मैं एनर्जी एज अ कॉन्सेप्ट को पहले साइंस का टर्म ना मान पहले साइंस का टर्म मानता था, आज मैं उसको अपनी बॉडी से भी रिलेट करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप वक्त के साथ समझोगे, शायद आज वो सेंस नहीं बना रही होंगी, एक समय में बनाएंगी। मैं भी बहुत मजाक उड़ाता था, यार पता नहीं यार मम्मी डेली सुबह उठ के क्यों ये फास्ट करती है, वो समझ में नहीं आता। इतना अच्छा अच्छा खाना है, क्या मिलता है इससे? चांद को देखने से और ये आरतियां करने से क्या हो जाएगा भाई पापा की लाइफ में? पता नहीं। Who knows? Like who knows all that, all those years of keeping that fast actually helped my father recover? We don't know. We Yeah. don't know. We don't know. आज मैं उसको एज अ वेलकमिंग थॉट सोचता हूँ कि ओके, मे बी मे बी देर इज एन एंटिटी आउट देयर हु इज एक्चुअली हेल्पिंग। आप उसको प्लेसिबो बोल लो, आप उसको एनर्जी बोल लो, दे सकते हो, भगवान भी नाम दे सकते हो। Even though I have like a certain belief system now, which is very different to what it used to be, I still look everything from a lens of a scientific phenomenon, right? लॉजिक। Understanding of a natural phenomena that is happening, right? Scientists have found out that there are multiple universes. There is good evidence of that. But the problem is with the technology that we have, we can't prove it right now. And I don't want to make it like a very religious thing, but I'll mention this. Um, from what we have learned in from the stories that we have heard as like a child in our households, have we not been told कि there are multiple universes? वी हैव वी हैव कितनी सारी बुक्स में लिखा है, आरती में हम गाते हैं, हाँ. बट तब समझ ही नहीं आता है। we Hmm. just we just we have like a very like I said, we have a very polarized way of thinking, right? कि हाँ मम्मा ने बोला है या पापा ने बोला है तो कर लेता हूँ, राइट? समझ नहीं आती है कभी कि क्या ये सही भी है। Because आपका वो अंदर से ना फीलिंग है, क्या ये ही है? Am am I the one who's wrong? Am I the one who Yeah, needs to grow? So जब तक वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी. and everybody is on their own journey. I know some people are still the same, मतलब I have other friends, right, who sometimes happen to speak with, और वो Hmm. आज भी वैसे ही हैं जैसे वो शायद 22-23 साल की उम्र में थे। So I cut myself out of that crowd because I don't think I belong there anymore. But they're still friends, like hi hello types. तो बातचीत होती है, बट समझ आ जाता है कि यार इसने अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया या जरूरत नहीं समझी अपने ऊपर काम करने की कभी। So let's just concise all that we spoke about थोड़ा सा। Although 10 साल की चीजें 10 साल की बातें 30 या 20 मिनट में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मोटा मोटी बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि अडेप्टेबिलिटी।
जो भी हम कर रहे हैं, we have to be adaptable in a way that everything that we go through, we fine tune. Every step we fine tune. Second, cut yourself some slack, because at this point you are doing what information you have available. हमेशा हर चीज नहीं पता होती है, समय के साथ चीजें बेहतर होती जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी समझ बेहतर होती है। और जब आप पुराने टाइम में देखते हो तो रादर देन रिग्रेटिंग कि यार ऐसा क्यों नहीं किया, काश मैं ऐसा कर लेता, इस थॉट प्रोसेस की बजाय जस्ट एम्ब्रेस कि ओके, हाँ, उस समय इतनी इतनी नॉलेज नहीं थी, और जो मैंने किया बेस्ड ऑन व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट माय एनवायरनमेंट कुड ऑफर, आई डिड। Yeah. माँ बाप से पूछा, माँ बाप एक अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, राइट? और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता उनसे। दे कैन टीच यू लाइफ इन जनरल, वो आपको वो लेसन देंगे जो शायद आप समय के साथ बाद में सीखोगे। वन वन वेरी सिंपल एडवाइस, डू नॉट बी अफ्रेड। Mm-hmm. Just do not be afraid, and try everything possible that you think is worth trying. Everything possible. मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस फील्ड या हर उस स्किल को ट्राई करने Mm-hmm. की बात कर रहा हूँ जो आप जो आप कर सकते हो। अच्छा है, बुरा है, वो अलग बात है। वहाँ हर चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वहाँ पे सक्सेसफुल होना है। कुछ चीज़ें आउट ऑफ जॉय भी की जाती हैं। ऑलराइट, सो thank you so much everyone for tuning into Ghee and Gains podcast yet again. And I hope today's episode gave you some good insights to think about and food for thought. And remember, growth is a journey. So stay wise, stay curious, and keep pushing for those gains, as our title says, whether it's in life, whether it's in fitness, whether it's in your career, whether it's any skill for what you want to get into. We'll catch you next time. Don't forget to subscribe for more insights on health, fitness, and everything in between. Thank you so much.